Good morning, students of class 4th. Students, I'm sure all of you are happy and healthy. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 67 as I'll be continuing with Unit 17, Degrees of Comparison. Students, please take out your English grammar book and turn to page number 67 as I'll be continuing with Unit 17, Degrees of Comparison. Students, in my last video, I had started with the rules to change the positive degree into the comparative and the superlative degree. And I had explained the first three rules. The first rule, that was rule number A, was that most words add ER and EST at the end to form the comparative degree and the superlative degree, as given in the column A on page number 67. बेटा positive degree से ही हम comparative and superlative degree बनाते हैं, and to form the comparative degree we add ER at the end of the word, and to form the superlative degree we add EST at the end of the word. ये first rule था हमारा. Then I'll read out the examples which we had done that day. The first word adjective was fair and that's a positive degree. And fair का बेटा अगर हम comparative बनाएंगे तो हम उसमें ER ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी comparative degree? Fairer. And fair की to form the superlative degree of fair we'll be adding EST तो क्या हो जाएगा? Fairest. So fair, fairer, fairest. Then the second adjective was sweet. To form the comparative degree of sweet we'll add ER to the word sweet at the end. तो हमारा जो comparative degree है that will be sweeter. To form the superlative degree of sweet we'll be adding EST at the end. So the superlative degree will be sweetest. So sweet, sweeter and sweetest. Then the third one. Third adjective is cheap. And to form the comparative degree of cheap we will be adding ER at the end. So our comparative degree will be cheaper. CHEAPER, cheaper. And to form the superlative degree we'll be adding EST at the end. So the superlative degree of cheap will be cheapest. CHEAPEST, cheap. Then the fourth adjective was fast. To form the comparative degree of fast, we'll be adding ER at the end. So the comparative degree of fast will be faster. To form the superlative degree of fast, we'll be adding EST at the end. So the superlative degree will be fastest. Fast, faster, fastest. Then rule number B. Words ending in E and R and ST only. बेटा वो adjectives जिनकी spelling में last में E आता है उनकी comparative degree form करने के लिए we just need to add R to the word at the end, and to form the superlative degree we need to add ST. The fifth example adjective is large, और large की spelling में बेटा E आता है तो उसकी जो comparative degree form करने के लिए we just need to add R at the end. तो क्या हो जाएगा? Larger. And to form the superlative degree of large we need to add ST at the end. तो क्या हो जाएगा? Largest. तो आपको ये याद रखना है second rule says कि adjectives ending with E जिनकी spelling में last में E आता है उनमें आपको comparative और superlative अगर form करना है तो comparative के लिए आपको last में खाली R ऐड करना है और superlative के लिए आपको उनके end में ST ऐड करना है. The sixth adjective is white, और white की spelling में भी WIDE E आता है लास्ट में तो उसकी comparative degree form करने के लिए हमें क्या लगाना है? सिर्फ R. तो क्या हो जाएगा? Wider. And to form the superlative degree of white हम उसके लास्ट में क्या लगाएंगे? ST. तो क्या हो जाएगा बेटा? Widest. Now the seventh adjective is pure. PURE, which again has got E at the end, and to form the comparative degree of pure we'll be adding R to the word pure at the end. तो क्या हो जाएगा? Pure. And to form the superlative degree
वी विल बी एडिंग st एट द एंड, तो क्या हो जाएगा? प्योरेस्ट, प्योर, प्योरर, प्योरेस्ट. द 8th वन इज ब्रेव. एंड ब्रेव की स्पेलिंग में भी बेटा लास्ट में क्या आता है? ई आता है. टू फॉर्म द कंपेरेटिव डिग्री वी सिंपली एडिंग आर, तो क्या हो जाएगा? ब्रेवर, BRAVER. सिर्फ हमने आर ऐड करना है. एंड टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री हम क्या ऐड करेंगे? BRAVE, उसमें सिर्फ ST. नाउ rule number C, children, I'll be explaining again because one rule is not there in the book but that also is related with this rule. तो बेटा वो रूल्स पहले आपको सी में फिर से रिवाइज करवाऊंगी एंड देन एक रूल जो आपकी बुक में नहीं दिया है बट वो भी वाई से है, so it will become easier for you. Now rule number C was that words ending, थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगी ऑन दी बोर्ड सो दैट द कंसेप्ट गेट्स क्लियर टू यू. वर्ड्स एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई रिप्लेस वाई एंड हम क्या ऐड करते हैं? कंपैरेटिव के लिए हम ऐड करते हैं IER और सुपरलेटिव के लिए हम ऐड करते हैं IEST. ये रूल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी समझाया था. अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग यू. एंड द एडजेक्टिव पॉजिटिव का क्या था? इजी. अब बेटा इजी के लास्ट में क्या है? वाई है ना? वाई, और वाई के पहले क्या है? एस कॉन्सोनेंट है. तो इसमें इसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम y को रिमूव करेंगे और IER लगा देंगे. तो ये हमारी इजी की कंपैरेटिव डिग्री क्या हो गई? इजी है. और इजी की सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? वी विल रिमूव y एंड ऐड IEST. तो ये क्या हो गया? इजीएस्ट, है ना? ये रूल था और इसके मैंने 4 एग्जाम्पल्स प्लस कुछ और एग्जाम्पल्स भी समझाए थे. और इसी रूल के बेसिस पे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दी नेक्स्ट रूल ऑल्सो. द 10th वर्ड वॉज हैप्पी. बेटा हैप्पी के लास्ट में क्या है? वाई है एंड वाई से पहले पी है. पी क्या है? कॉन्सोनेंट है. पी कॉन्सोनेंट है तो कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगी इसमें? वाई को वी विल रिप्लेस बाय IER. तो ये हो गई आपकी हैप्पियर. दिस इज द कंपैरेटिव डिग्री. एंड इसकी सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? अगेन वी विल रिमूव वाई एंड ऐड IEST. तो हमारी जो सुपरलेटिव डिग्री है वो क्या हो गई? हैप्पीएस्ट. सो अभी आपको ये वाला रूल मैं फिर से समझा दूं. इसमें है कि लास्ट में एडजेक्टिव के लास्ट में वाई है और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट सबको पता है. देयर आर 26 अल्फाबेट्स एंड उसमें 5 वॉवल्स होते हैं. दैट इज AEIOU. रेस्ट ऑल आर कॉन्सोनेंट्स. तो जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं अगर वाई के पहले वो है तो हमें उसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए वाई को रिमूव करके IER ऐड करना है. सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए वाई को रिमूव करके IEST ऐड करना है. द 11th एडजेक्टिव इज कॉस्टली. अब बेटा कॉस्टली के लास्ट में भी वाई है और वाई के पहले एल है विच इज अगेन अ कॉन्सोनेंट. तो इसमें भी हम इसकी कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? वाई को हम रिमूव करेंगे. वी विल बी रिमूविंग वाई एंड एडिंग IER. तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस्टलियर. एंड इसकी सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? वाई को रिमूव करके IEST ऐड करेंगे. फाइन. नाउ द 12th वन इज अगली. अब बेटा अगली की कंपैरेटिव डिग्री अगलियर है. इसमें भी हम वाई को रिमूव करके लास्ट में क्या लगाएंगे? IER. एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम वाई को रिमूव करके क्या ऐड करेंगे? IEST. फाइन. अब बेटा एक रूल जो आपके बुक में नहीं दिया है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ. द रूल इज नॉट गिवन इन योर बुक. So please take out your English notebook and you please write this rule in your English notebook. Please make a column बेटा. आप ऐसा ही कॉलम बनाएंगे अपनी इंग्लिश नोटबुक में
and you will be थोड़ा सा उसमें चेंज है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है. फाइन. ना ये रूल है. रूल प्लीज राइट डाउन इन योर इंग्लिश नोटबुक. वर्ड्स एंडिंग in vowel plus y then we add जो वर्ड्स जिनके लास्ट में y हो और y के पहले अगर vowel हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री में क्या करते हैं, आगे हम उसमें ER ऐड करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री में हम उसमें EST ऐड करते हैं. ये आपको याद रखना है. फाइन. कि अभी इससे पहले वाले रूल में हमने पढ़ा था. प्लीज राइट दिस रूल इन योर इंग्लिश नोटबुक. गिव द हेडिंग यूनिट 17 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एंड उसके बाद वर्ड्स एंडिंग इन वावल प्लस y देन वी ऐड जो वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग में लास्ट में y आता है लेकिन y से पहले अगर वावल आ रहा है. बेटा अगर y से पहले उनमें वावल आ रहा है तो हम क्या करेंगे, तब हम उनको, उसका मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ. गे, the word is gay, G-A-Y, गे. गे मीन्स हैप्पी. गे का मतलब होता है हैप्पी. अब आप ध्यान से गे की स्पेलिंग देखो. आई राइट इट मोर बिगर, G-A-Y. अब आप ध्यान से गे की स्पेलिंग देखो. गे के लास्ट में y है और y के पहले क्या है, a है. और a क्या है, a तो वावल है ना. तो ये रूल कहता है कि जिस भी एडजेक्टिव में लास्ट में y आता है और y के पहले अगर वावल आ रहा है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हमें सिंपली पहले वो वर्ड लिखना है एज इट इज और उसके आगे हम क्या ऐड कर देंगे, ER. तो क्या हो जाएगा, गेयर. गे, गेयर. हैप्पी एंड गेयर मीन्स मोर हैप्पी. फाइन. तो ये आपको याद रखना. इसीलिए मैंने आज रूल नंबर C फिर से रिवाइज कराया सो दैट कि ये वाला रूल आपको क्लियर हो जाए कि जहाँ पे y लास्ट में है और y के पहले अगर बेटा कॉन्सोनेंट है तो उसमें y रिमूव होके कंपैरेटिव डिग्री के लिए IER हम ऐड करेंगे एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए y रिमूव करके हम IST ऐड करेंगे. और जिसमें y के पहले अगर वावल है ना, y के पहले a क्या है, वावल है, A-E-O-U. 5 वावल्स होते हैं और अगर ये वावल है तो आपको उसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उसके आगे आपको क्या लगाना है, बस ER ऐड करना है. और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करेंगे तो हम उसमें बस खाली एंड में बेटा EST ऐड कर देंगे. फाइन. सो गे, गेयर, गेस्ट. ये आपको याद रखना है कि y के पहले अगर वावल है तो खाली कंपैरेटिव डिग्री के लिए हमको ER ऐड करना है और सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमको EST ऐड करना है. लेकिन अगर y के पहले कॉन्सोनेंट है तो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करेंगे तो वी विल बी रिमूविंग द y एंड रिप्लेसिंग इट विद IER. सुपरलेटिव डिग्री में हम y को रिमूव करके उसमें IST ऐड करेंगे. तो बेटा आपको यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल चेंजिंग द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्री. अगर y के पहले वावल है तो कुछ नहीं करना है, बस उसमें कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए ER ऐड करना है एंड सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए EST. सो प्लीज राइट दिस रूल इन योर इंग्लिश नोटबुक. नहीं तो पता चला कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे. दिस रूल इज नॉट गिवन इन योर ग्रामर बुक बट आई थॉट कि अभी मैं आपको ये क्लियर कर दूं. द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रे. बेटा नेक्स्ट वर्ड ग्रे है ना. आप ध्यान से अगर ग्रे की स्पेलिंग देखोगे तो ग्रे के लास्ट में क्या है, y है एंड y के पहले क्या है बेटा, E है. E क्या है, E भी वावल है. E भी वावल है. तो इसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रे एज इट इज ER ऐड कर दिया तो क्या हो गया, ग्रेयर. एंड इसकी सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ग्रे एज इट इज वी राइट एंड देन
we'll be adding est. Fine. So grade, grader, gradest. I hope now the rule is clear to you कि अगर y के पहले कॉन्सोनेंट एडजेक्टिव की कोई भी स्पेलिंग जिसके लास्ट में y है, y के पहले अगर वावल है, ए वावल है, ई वावल है, तो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम उसमें बस हमें उस वर्ड को एज इट इज लिख के उसके एंड में ई आर ऐड करना है. And to form the superlative degree, we simply need to write the word and add est. But अगर एडजेक्टिव में लास्ट में स्पेलिंग में y है एंड y के पहले अगर बेटा कॉन्सोनेंट है, देन वी नीड टू रिमूव द y फॉर्मिंग द कंपैरेटिव डिग्री. वी नीड टू रिप्लेस द y विथ IER एंड टू फॉर्म द सुपरलेटिव डिग्री वी नीड टू रिप्लेस y विथ IEST. सो बेटा ये मेन डिफरेंस है. और ये डिफरेंस क्या है, y के पहले आपको याद रखना है कॉन्सोनेंट है तो y हट जाएगा, IER और IST लगेगा, और अगर वावल है तो एज इट इज वर्ड रहेगा. कंपैरेटिव डिग्री के लिए बस वी नीड टू ऐड ER एंड सुपरलेटिव डिग्री के लिए वी नीड टू ऐड EST. फाइन. So I hope all of you have written this rule in your English notebook. This rule is not given in your grammar book, but आपको पता होना चाहिए. So that the concept is clear in your mind कि y के पहले consonant है तो क्या होगा and y के पहले अगर vowel है तो क्या होगा. I hope all of you have written this in your English notebook, children. सबने इसको English notebook में लिख लिया. Fine. So now I'm going to erase this and start with your grammar book. Grammar book का आपका rule number D. I hope अब y के जो adjectives ending with y में किसी को कोई confusion नहीं होगा. Now let's switch on to our grammar book. Now the next rule, that is rule number D in your grammar book, is small words with the single consonant, small words with the single consonant at the end small words with the single consonant at the end, double the last consonant then add ER and EST. अब बेटा ये रूल क्या कहता है कि स्मॉल वर्ड्स, जो स्मॉल वर्ड्स है बेटा, जो स्मॉल वर्ड्स है विथ द सिंगल कॉन्सोनेंट एट द एंड, है ना, छोटे वर्ड्स जिनके लास्ट में सिंगल कॉन्सोनेंट है. Now let's take the word hot, H-O-T. H-O-T बहुत ही छोटी स्पेलिंग वाला एडजेक्टिव है और इसके लास्ट में क्या है बेटा, T है ना, और T क्या है, ये कॉन्सोनेंट है, छोटी स्पेलिंग वाला वर्ड है, लास्ट में T है विच इज अ कॉन्सोनेंट, और ये T क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है. तो इसका हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे, इसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम लास्ट वाले जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे. डबल टी मैंने ऐड किया और उसमें मैंने ER लगा दिया, तो ये क्या हो गया, हॉट. फाइन. हॉट छोटी स्पेलिंग वाला वर्ड है, एंड में इसके क्या है बेटा, T है.
एंड इसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए वी नीड टू डबल द कॉन्सोनेंट। जो सिंगल लेटर है उसको हमको डबल करना है, लास्ट लेटर को हमको डबल करना है और उसमें ER लगाना है टू फॉर्म द कंपैरेटिव फॉर्म। और इसकी सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए अगेन हम हॉट में लास्ट में T को डबल करेंगे और उसमें क्या लगाएंगे EST, तो क्या हो जाएगा हॉटेस्ट, है ना। तो ये रूल क्या कहता है, स्मॉल वर्ड्स विद द सिंगल कॉन्सोनेंट एट द एंड डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट देन ऐड ER एंड EST। जो स्मॉल स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट है ना, और उस कॉन्सोनेंट को जब हम कंपैरेटिव फॉर्म करेंगे तो उस कॉन्सोनेंट को हमको डबल करना होगा, उस कॉन्सोनेंट को हमको डबल करके ER लगाना होगा। सुपरलेटिव फॉर्म करने के लिए उस कॉन्सोनेंट को डबल करके EST ऐड करना होगा। नाउ द नेक्स्ट वर्ड, द 14th वर्ड इज बिग। अब बिग की स्पेलिंग भी आप देखिए, लास्ट में G है, G क्या है कॉन्सोनेंट है, छोटी स्पेलिंग वाला वर्ड है। तो अब इसका हमको कंपैरेटिव फॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है उसको डबल करेंगे और क्या ऐड करेंगे ER, तो क्या हो गया बिगर। और बिग की सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, लास्ट में कॉन्सोनेंट को डबल करके और हम उसमें क्या ऐड करेंगे EST, तो क्या हो जाएगा बिगेस्ट। क्लियर। स्मॉल वर्ड्स, स्मॉल स्पेलिंग वर्ड्स विच हैव गॉट, जिनकी स्पेलिंग्स बहुत कम है ना, छोटे वर्ड्स, स्मॉल वर्ड्स विद लेस स्पेलिंग, है ना, स्मॉल वर्ड्स, है ना, छोटी स्पेलिंग वाले वर्ड्स जो हैं उनमें अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है तो हम उनको डबल, कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और ER ऐड करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म हो जाएगी। और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए कॉन्सोनेंट को डबल करके हम उसमें क्या ऐड करेंगे बेटा EST। नाउ द 15th one, the word is thin। thin भी बेटा छोटी स्पेलिंग वाला वर्ड है और लास्ट में thin के क्या है N है, और N क्या है बेटा, N क्या है, N कॉन्सोनेंट है। इसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम N को डबल करेंगे और उसमें हम ER ऐड करेंगे, तो थिन का क्या हो जाएगा थिन, थिनर। और इसकी सुपरलेटिव डिग्री हम फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे बेटा THINNEST, थिनेस्ट। क्लियर। सो आपको क्या रखना है कि स्मॉल वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग बहुत कम है और उनकी स्पेलिंग के लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम कॉन्सोनेंट को डबल करके ER ऐड करेंगे। अब देखो सब में कॉन्सोनेंट डबल करके ER ऐड हुआ है, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए कॉन्सोनेंट को डबल करके हम क्या ऐड करेंगे बेटा EST। फाइन। नाउ the 16th word, that is red। अब रेड में, रेड की स्पेलिंग भी स्मॉल वर्ड वाली स्पेलिंग है, बहुत कम वर्ड्स हैं इसमें, है ना, 3 लेटर्स है, सॉरी कम वर्ड्स नहीं, बहुत कम लेटर्स है इसमें, 3 लेटर्स है ना, और ये स्मॉल वर्ड है। तो इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम D को डबल करेंगे जो कॉन्सोनेंट है और उसमें हम ER जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा रेड का रेडर। और इसकी हम सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए क्या करेंगे बेटा, लास्ट में D को डबल करके हम उसमें क्या ऐड कर देंगे EST, रेडेस्ट। क्लियर। सो आई होप अभी सबको ये रूल समझ में आया है। रूल नंबर D says that small words with the single consonant at the end, स्मॉल स्पेलिंग वाले वर्ड्स हैं और जिनके लास्ट में कॉन्सोनेंट है उनकी कंपैरेटिव डिग्री हम कैसे फॉर्म करेंगे बेटा, उनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम कॉन्सोनेंट को डबल करके और लास्ट में ER ऐड करेंगे, और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए कॉन्सोनेंट को डबल करके लास्ट में हम EST ऐड करेंगे। अब सारे स्मॉल वर्ड्स हैं, हॉट, बिग, थिन, रेड, और सबके एंड में देखो कॉन्सोनेंट है, कहीं भी वावल नहीं है। तो ऐसे स्मॉल वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग बहुत छोटी है और उनका हम कंपैरेटिव, उन एडजेक्टिव की कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे, कॉन्सोनेंट को डबल करके ER ऐड करेंगे
तो क्या हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, एंड कॉन्सोनेंट को डबल करके हम EST ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगी सुपरलेटिव डिग्री. हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. बिग, बिगर, बिगेस्ट. थिन, थिनर, thinnest. And red, redder, reddest. Fine. I hope this rule is clear to everyone. Fine. I hope all of you have completed this. Now, I'll take two more. इसके मैं कुछ और examples आपको समझाऊंगी which are not given in the book. So please do not write. You simply need to understand. है ना? इसी रूल के मैं आपको कुछ और examples समझा रही हूँ जो आपको समझना है, लिखना नहीं. The next word is fat. अब fat भी एक क्या है बेटा? fat क्या है? फैट भी एक स्मॉल वर्ड है ना, और इसमें भी बहुत कम 3 लेटर्स है, और लास्ट में क्या है बेटा? टी है, और टी क्या है? टी इज अ कॉन्सोनेंट. अब फैट की हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? रूल क्या कहता है? स्मॉल वर्ड्स हैं जिनमें बहुत कम लेटर्स हैं और जिनकी स्पेलिंग के लास्ट में बेटा अगर टी है, लास्ट में अगर टी है, टी क्या है? कॉन्सोनेंट है, लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री हम फॉर्म करने के लिए हम डबल करेंगे कॉन्सोनेंट को, जो लास्ट वाला है टी को हमने डबल किया, और हम क्या ऐड करेंगे? ER. तो क्या हो गया? फैटर. फैट, फैटर, है ना? स्मॉल स्पेलिंग वाला वर्ड है, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हम कॉन्सोनेंट को डबल करेंगे और हम क्या लगाएंगे? ER. आई होप सबको समझ में आ रहा है. नाउ जो उसकी फैट की सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे? हमने पहले फैट लिखा, टी को डबल किया और हमने उसमें क्या ऐड कर दिया? EST. तो क्या हो गया? फैटेस्ट. क्लियर? फैट, फैटर, फैटेस्ट. फाइन. सो ये आपको याद रखना है कि स्मॉल वर्ड्स जिनकी बहुत छोटी स्पेलिंग है और उन वर्ड्स के लास्ट में 3 लेटर या 4 लेटर वर्ड्स हैं, और अगर लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उस कॉन्सोनेंट को डबल करके ER करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, उस कॉन्सोनेंट को डबल करके EST करेंगे तो सुपरलेटिव डिग्री. बिग है ना, फैट है ना, थिन, ये सारे ऐसे ही वर्ड्स हैं. नाउ दी नेक्स्ट एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेती हूँ SAD, सैड. सैड भी एक स्मॉल वर्ड है ना, 3 लेटर की ही स्पेलिंग है SAD, सैड, है ना, बट ये एडजेक्टिव होना चाहिए. हाँ, ये आपको ध्यान रखना है. एंड आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर दैट एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, दे डिस्क्राइब अ नाउन. अब सैड की स्पेलिंग में लास्ट में क्या है बेटा? सेट की स्पेलिंग में लास्ट में डी है, और डी क्या है? डी कॉन्सोनेंट है. तो सेट की हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे बेटा? हम इस कॉन्सोनेंट को डबल करके ER ऐड कर देंगे तो कंपैरेटिव डिग्री. सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो उसी कॉन्सोनेंट को डबल करके हम EST ऐड कर देंगे तो हमारी सुपरलेटिव डिग्री. तो सैड का क्या हो जाएगा? सैड. हमने डबल किया, किसको डबल किया? कॉन्सोनेंट को डबल किया, और हमारी कंपैरेटिव डिग्री इज रेडी. SADDER, सैड. और इसी की सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करनी है तो हम क्या करेंगे? SADDEST, ये हो गई हमारी सुपरलेटिव डिग्री. सो आई होप चिल्ड्रन, ये डी वाला रूल अगेन हम रिपीटिंग इट, कि जो स्मॉल वर्ड्स हैं है ना, जिनमें 3 या मैक्सिमम 4 लेटर्स हैं और उनके स्पेलिंग में अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है एडजेक्टिव्स के, तो उनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है? हम कॉन्सोनेंट को डबल करके ER ऐड करेंगे तो कंपैरेटिव डिग्री, एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करेंगे कॉन्सोनेंट को डबल करके EST ऐड करेंगे. फाइन. सो आई होप चिल्ड्रन, जो मैंने आज आपको रूल्स पढ़ाए हैं, दीज रूल्स आर क्लियर टू यू, है ना. एक कौन सा इसके पहले जो रूल नंबर C था जो कल पढ़ाए थे वो रिवाइज कराया, कि एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में Y है ना, एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में
वाई हो और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट आ रहा है तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करेंगे, वाई को रिमूव करके IER लगाएंगे। एंड सुपरलेटिव डिग्री कैसे फॉर्म करेंगे, वाई को रिमूव करके IEST लगाएंगे। बट कुछ एडजेक्टिव्स जिनके लास्ट में वाई आ रहा है और वाई से पहले अगर वावल आ रहा है तो एज इट इज एडजेक्टिव लिख के उनकी कंपैरेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उसमें बस हम ER लगा देंगे और सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करने के लिए उसके लास्ट में हम AST लगा देंगे। तो एडजेक्टिव्स के एंड में वाई है फाइन, लेकिन उसके पहले कॉन्सोनेंट है या वावल है, उसके हिसाब से आप कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री फॉर्म करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू हैव अंडरस्टूड the 5 rules which I have explained till now, and one rule which is not given in the book. I am sure all of you have written that rule in your notebook. Students, please learn these rules so that you can form the comparative degree and the superlative degree easily. That's all for today. Thank you, students. Have a good day ahead.